السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مالی چیلنجز کے باوجود ریاست کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے حکومت مسلسل کام کر رہی ہے۔ اسکیموں کو عوام تک پہنچانا اولین ترجیح۔ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا گرام سبھاؤں کے لیے وزیر اعلیٰ کا پیام۔ مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں گیس کی قلت۔ یونیفارم سول کوڈ دستوری حقوق کی خلاف ورزی۔ بیرسٹر اویسی کی آسام میں میڈیا سے بات چیت۔ شہر میں ملاوٹی اور ناقص غذائی اشیاء کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 12 ٹن بکرے کا گوشت اور دوسرا سامان ضبط۔ غیر قانونی بیکری کا بھی پردہ فاش۔ اور بدعنوان عہدیداروں کے خلاف اے سی بی کی کارروائی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے سینئر اسسٹنٹ اور جونیئر اسسٹنٹ رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ چیتنیہ پوری کا اے ایس آئی بھی پکڑا گیا۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزا عزیز باغ شیخ پیٹ، کیو میکس RF آرکیٹ الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے 99 روزہ ایکشن پلان کے تحت جمعرات کو ریاست بھر میں گرام سبھائیں منعقد ہوئیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام کے نام اہم پیغام جاری کیا، جسے افسران گاؤں کی سطح پر پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی حکومت کو 2 سال 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں اور حکومت مالی چیلنجز کے باوجود ریاست کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت خود کو حکمران نہیں بلکہ عوام کا خادم سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اسکیموں کو عملی طور پر عوام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے، اور اسی مقصد سے 6 مارچ سے 99 دنوں کا پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس میں تمام محکمے مل کر کام کر رہے ہیں۔ افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ مقامی مسائل کو فوری حل کریں، فائلوں کی تیز رفتار منظوری اور شفافیت کو یقینی بنائیں،
वज़ीर आला ने महालक्ष्मी स्कीम समेत मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों के फ़वाइद मुस्तहिकीन तक पहुंचाने पर जोर दिया और तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन के तहत रियासत को हर शोबे में आलमी मियार तक ले जाने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि 99 दिनों का यह एक्शन प्लान एक अहद है और रियासत के 4 करोड़ अवाम को मुत्तहिद होकर इसे कामयाब बनाना होगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुल्क के अपोजिशन जमातों को चैलेंज किया कि वो तेलंगाना आकर हुकूमत की जानिब से नाफिज की गई 6 जमानतों पर अमल दरामद खुद देखें। रियासत केरला के शहर कोची में यूडीएफ मंशूर जारी करते हुए उन्होंने केरला के वज़ीर आला पी विजयन और तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुकूमतों पर शदीद तनकीद की और उन्हें बदउनवान और आमिराना करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ से मिलने वाले फंड्स कोई एहसान नहीं बल्कि अवाम का हक हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जैसे तेलंगाना में 2023 के बाद तब्दीली आई वैसी ही तब्दीली अब केरला में भी आने वाली है और यूडीएफ इख्तिदार में आएगा। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही किसान कर्ज मुआफ़ी, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम जैसे वादों पर अमल किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि यूडीएफ हुकूमत बनते ही पहले काबीनी इजलास से ही वादों पर अमल दरामद शुरू कर देगी। रियासती वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने संगारेड्डी ज़िले के अलमाईपेट गांव में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत घरों की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह के लिए पुरअज़्म है और गरीबों की तरक्की के मकसद से मुख्तलिफ फलाही स्कीमें मौसर तरीके से नाफिज की जा रही हैं। वज़ीर ने अवाम से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के सेहत के लिए जारी तिब्बी टेस्ट प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। उन्होंने बताया कि ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क़र्ज़े, सब्सिडी, मुफ्त बिजली, मुफ्त बस सफ़र और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर गाँव की तरक्की के लिए सड़कें, ड्रेनेज, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान किया गया। बीआरएस लीडर और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के तलबा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा ड्यूसिमस विलीट के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज के दौर में कानून की तालीम हासिल करना आपको ख़ास बनाता है और आपको मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 5 करोड़ मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं और गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए नौजवान वकला को इंसाफ के लिए आगे आना चाहिए। हरीश राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हेट स्पीच बिल दरअसल आज़ादी इजहार को महदूद करने की कोशिश है। उन्होंने जोर दिया कि जमहूरियत में अदलिया सबसे अहम सुतून है और नौजवान वकला को आइन और आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। कानून साज कौंसिल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने कहा कि इजलास अवामी मसाइल पर बहस के बजाय कांग्रेस की नाकामियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इजलास मुख्तसर रखे गए, सवालिया वक्फा कम किया गया और अहम मौज़ूआत पर बहस की इजाज़त नहीं दी गई। बीआरएस लीडर एल रमना ने कहा कि बजट इजलासों में किसानों, नौजवानों, ख़वातीन और बेरोज़गारों के मसाइल पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने हुकूमत पर वादे पूरे न करने और दीगर रियासतों में सियासत करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। ग्रेटर हैदराबाद में मच्छरों की बढ़ती हुई परेशानी के खिलाफ एलबी नगर के एमएलए देविरेड्डी सुधीर रेड्डी ने असेंबली मीडिया हॉल में मच्छरदानी और फॉगिंग मशीन के साथ प्रेस मीट करने की कोशिश की, मगर मार्शल्स ने उन्हें रोक दिया और सामान जब्त कर लिया, जिस पर उन्होंने सख्त एहतजाज किया। बाद में सुधीर रेड्डी ने मच्छरदानी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हैदराबाद में मच्छरों की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनके मुताबिक हुकूमत मच्छरों के तदारुक पे नाकाम रही है, जिससे डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने हर डिवीज़न को 10 फॉगिंग मशीनें फराहम करने का मुतालबा किया और कहा कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो हैदराबाद की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मार्शल्स के रवैये की भी मज़म्मत की।
जीएचएमसी के साबिक फ्लोर लीडर डी राजशेखर रेड्डी ने एमएलए सुधीर रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मच्छरों के मसले पर मच्छरदानी ओढ़कर प्रेस मीट करना शर्मनाक है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि सुधीर रेड्डी 20 साल से मुख्तलिफ ओहदों पर रहने के बावजूद मसला हल नहीं कर सके और अब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की मूसा नदी की सफाई के इक़दामात में रुकावट डालकर अब मच्छरों पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। राजशेखर रेड्डी ने मुतालबा किया कि तनकीद छोड़कर अवामी सहूलतों पर तवज्जो दी जाए। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आसाम के असम्बली इंतखाबात के लिए जुमेरात को AIUDF की इंतखाबी मुहिम चलाई। गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को रोकने में नाकाम रही है। आज अगर आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा वजीर आला हैं तो वो कांग्रेस की वजह से हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की हुकूमत की वजह से आसाम में 50,000 मकानात को मुनहदिम कर दिया गया। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि AIUDF की हिमायत की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज गैस का बहरान पाया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स, बंडियों पर चाय बनवाने वालों के अलावा सड़क पर छोटे कारोबार करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि वजीर आजम मोदी को अमेरिकी सदर से बिना डरे जंग के खात्मे पर जोर देना चाहिए। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजहब हिंदुस्तानी दस्तूर में दिया गया बुनियादी हक है। बैरिस्टर ओवैसी ने आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज से मुताल्लिक बीजेपी के एजेंडे पर कहा कि इसका अहम मकसद हिंदू कोड को नाफिज करना है और ये पूरी तरह से गैर दस्तूरी है। जुमेरात की सेपहर बैरिस्टर ओवैसी ने रैली से खिताब करते हुए AIUDF के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर में ऑटो गैस की किल्लत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बताया कि घंटों कतारों में खड़े होने के बावजूद भी ऑटो ड्राइवर्स गैस के हुसूल से कासिर हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी से भी बात हुई है और उन्हें ऑटो ड्राइवर्स की मुश्किलात से वाकिफ करवाया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि हैदराबाद में HP और दूसरे कंपनियों के 25 से 28 गैस स्टेशन हैं और एक स्टेशन पर 3 से 6 टन की गैस सरबराह हो रही है, जबकि इसे सिर्फ 100 से 150 ऑटोस को ही गैस फराहम हो पा रही है, जबकि कतारों में 1000 से ज़ायद ऑटोस मौजूद हैं। रुकन असम्बली ने मुतालबा किया है कि ऑटो गैस स्टेशन पर फौरी सरबराही में इजाफा किया जाए। हम तमाम MLAs ने सदर मजलिस के हुक्म के ऊपर सिविल सप्लाई मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बात किए। जो ये गैस के ऑटो वालों को जो परेशानी हो रही है, गैस नहीं मिल रही है, तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब अभी केरला में हैं। कल या परसों वो हैदराबाद में आएंगे, फिर उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल मसला ये है कि जुमला गवर्नमेंट के जो HP और इंडियन के जो गैस स्टेशन है वो पूरे हैदराबाद में 25-28 गैस स्टेशन है, जिसमें एक एक गैस स्टेशन को ये लोग 5 टन, 3 टन, 6 टन ऐसा गैस फराहम कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक गैस स्टेशन के ऊपर मैक्सिमम 150 ऑटो तक, 100 से 150 ऑटो तक ही वो लोग गैस दे सक रहे हैं, जबकि हजारों ऑटो एक एक गैस स्टेशन के ऊपर लाइन में है। प्राइवेट जितने भी गैस स्टेशन है, चाहे गो गैस हो, टोटल हो, ये सब लोग टोटली बंद है। तो प्राइवेट गैस एजेंसी से भी बात करें तो उन लोगों का कहना यह है कि पीर तक प्राइवेट गैस स्टेशन नॉर्मल होंगे। हम हुकूमत से ये कहते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि भाई आप एक एक गैस स्टेशन को आप सप्लाई बढ़ाइए। जहां पर 3-3 हजार, 4-4 हजार ऑटो लाइन में ठहरे हुए हैं, वहां पे आप सिर्फ 100-150 ऑटो को, 200 के अंदर ऑटोस को आप गैस दे सक रहे हैं। बकाया पूरे लोग बेरोजगार होकर लाइनों में सुबह से शाम तक ठहर रहे हैं। इसमें कई लोग बीमार भी हो जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा माहौल खराब बने हुआ है। मजलिस ने असेंबली में भी इसके ऊपर आवाज उठाई थी। तो बहरहाल सदर मजलिस के हुक्म पर आज उत्तम कुमार रेड्डी साहब से भी हमने बात किया। वो केरला में हैं, इंशाअल्लाह कल या परसों वो आएंगे तो जाकर मिलकर भी उनसे नुमाइंदगी करेंगे
اور یہ دیکھیں گے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے یہ گیس کا مسئلہ جو آٹو والوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکالنے کے لیے حکومت زور ڈالے گی، اور بہرحال نمائندگی کر بھی رہی ہے کہ کس بھی طریقے سے یہاں پر سپلائی بڑھائیے، آپ بڑھا کے ان لوگ کو جو تکلیف ہو رہی ہے تکلیف کی دور کریے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے مال برداری، مسافروں کے سفر اور آمدنی میں ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یکم اپریل سے شروع ہو رہے نئے مالی سال کے دوران اس زون کی کارکردگی، وسائل و امکانات سے میڈیا کے نمائندوں کو واقف کرواتے ہوئے جنرل مینیجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے سنجے کمار سریواستو نے بتایا کہ نئے مالی سال کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے کو 13,026 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہ رقم 11,012 کروڑ روپے تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ساؤتھ سینٹرل ریلوے ریاست تلنگانہ کے علاوہ جزوی طور پر ریاست مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش کا احاطہ کرتا ہے۔ تلنگانہ کے لیے 5,454 روپے مختص کیے گئے۔ اس زون میں 147.87 لاکھ میٹرک ٹن کا سامان منتقل کیا اور 286.44 بلین مسافرین کی خدمت کی۔ اس زون نے 6,235.37 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی گئی۔ انہوں نے اس زون کے تحت نئی ریلوے لائن، موجودہ لائن کو ڈبل کرنے اور امرت بھارت اسکیم کے تحت مختلف ریلوے اسٹیشنز کو عصری بنانے کی تفصیلات بھی پیش کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجوزہ SIR پروگرام کے سلسلے میں رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے ڈپٹی کمشنر بلدیہ اور BLOs کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ رکن اسمبلی نے SIR کے اندراج سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ BLOs کو عوامی رہنمائی اور شعور بیداری پر زور دیا گیا۔ گھر گھر جا کر عوام سے رابطہ کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین SIR کے عمل کو لے کر پوری طرح سے متحرک ہو چکی ہے۔ مجلس نے کئی حلقہ جات کے ڈویژنز میں ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیے ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں سے نمائندگی کر کے آلودہ پانی کے سربراہی کے مسائل کی یکسوئی کر دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پانی کی ٹانکیوں کی صفائی کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بالائی علاقے پر واقع بوسٹرز بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹانکیوں کی صاف صفائی کا کام آج مکمل ہو جائے گا، جس سے مکینوں کو پینے کے لیے شفاف پانی ملے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ قدیم ٹانکی کی جگہ ایک نئی ٹانکی بھی بنائی جائے گی تاکہ مستقبل میں مسائل پیدا نہ ہوں۔ اس موقع پر مجلس کے سابق رکن بلدیہ مقتدر بابا اور مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی محمد مبین نے مقامی سابق رکن بلدیہ مقتدر بابا کے ساتھ اچانک دورے کر کے SIR کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ SIR کے عہدیداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ محمد مبین نے بتایا کہ عوام ہیلپ ڈیسک کے ذمہ داروں کی خدمات سے بھی استفادہ کریں جو حلقہ اسمبلی بہادرپورہ میں لگائے گئے ہیں۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ شہر میں ہنومان جینتی شوبھا یاترا جلوس پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ گولی گوڑا رام مندر اور کرمن گھاٹ سے جلوس نکالا گیا۔ گولی گوڑا سے نکالا گیا جلوس نارائن گوڑا، چکڑپلی، RTC کراس روڈ، اشوک نگر، گاندھی نگر، بنسی لال پیٹ، سبھاش روڈ، اجینی مہانکلی مندر اور پیراڈائز چوراہے سے ہوتا ہوا تاڑبن ہنومان مندر سکندرآباد پہنچا۔ دوسری طرف کرمان گھاٹ سے بھی نکالا گیا جلوس مختلف گزرگاہوں سے ہوتا ہوا سکندرآباد پہنچا۔ چار مینار مدینہ بلڈنگ سے بھی جلوس کا گزر ہوا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ کئی مقامات پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا تھا۔ جلوس میں شیواجی کے ساتھ مجرم گینگسٹر لارنس بشنوئی کے پوسٹرز بھی دیکھے گئے اور بعض مقامات پر شرنگیز نعرے بھی لگائے گئے۔ جلوس کی CCTV کیمرے کے ذریعے بھی نگرانی کی گئی۔ کمشنر پولیس VC سجنار کی قیادت میں وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے کمشنر RV کرنن نے KBR پارک فلائی اوور کے کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کمشنر کرنن نے چیف انجینئر رتناکر کے ساتھ جمعرات کو فلائی اوور کے کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے ہدایت دی ہے کہ کام کی جلد تکمیل کے لیے وقت مقرر کیا جائے۔ ہر ہفتہ کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے۔ شہر کے کئی علاقوں میں ملاوٹی اشیاء، ناقص چکن، مٹن کے خلاف فوڈ سیفٹی اور بلدیہ کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منگل ہاٹ کے حدود میں بھی A to Z شپ اور گوٹ دکان پر دھاوا کیا گیا۔
बताया जाता है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर गोश्त लाकर शहर की होटलों में सरबराह किया जा रहा था। धावे के दौरान भारी मिकदार में पाए सर का गोश्त, भेजा, गुर्दे, कलीजी और दीगर सामान भी जब्त किया गया। इस दुकान का मैनेजर रफ़ी अहमद ने बताया है कि जबकि अफरोज भी इसके साथ काम किया करता था। पुलिस ने बताया कि इस तरह एक अरसे से जखीरा किए गए गोश्त और दूसरे सामान के इस्तेमाल से अवाम की सेहत मुतासर हो सकती है और अवाम को इससे मोहतात रहना चाहिए। जब्त किए गए सामान की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है। तकरीबन 12 टन बकरे और बकरी के गोश्त और दूसरे सामान को जब्त किया गया है। अफरोज और उसके साथी रफ़ी अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। टास्क फोर्स गोलकुंडा और टप्पा चबूतरा पुलिस ने बेकरी पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर तैयार की जा रही अशिया को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि नटराज नगर झर्रा के इलाके में चांद बेकरी में मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स गैर कानूनी तौर पर तैयार किए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि गैर सेहत बख्श माहौल में ये अशिया तैयार की जा रही थी। मुसद्दका इतला मिलने पर पुलिस ने बेकरी पर धावा किया। बेकरी के मालिक कदीर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2,77,630 रुपए के सामान को जब्त किया है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव की निगरानी में यह धावा किया गया। महकमे इंसदाद रिश्वततानी ने सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट बिल सेक्शन उस्मानिया यूनिवर्सिटी को रुश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी ने बताया कि सीनियर असिस्टेंट अरविंद ने पेंशन के एक मामले में 13,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। इस सिलसिले में जूनियर असिस्टेंट ने राब्ते का काम किया। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर अरविंद और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। तेलंगाना की महकमे इंसदाद रिश्वततानी एसीबी ने मलकाजगिरी कमिश्नरेट चैतन्यपुरी के एएसआई पी बालिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। बताया जाता है कि पी बालिया ने एक केस के सिलसिले में 15,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। इत्तला मिलने पर एसीपी ने बालिया को गिरफ्तार किया है। मजीद कार्रवाई जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जुमेरात को मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आईपीएसी दफातर और सीनियर ओहदेदारों के मकानात पर धावे किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में एक साथ धावे किए गए। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में इन धावों की इत्तला है। मैलार्देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े इंदिरा गांधी सोसाइटी के पास तलाई चैन छीनने वाले ने हलचल पैदा कर दी। बताया जाता है कि शुभम नामी शख्स ने तलाई चैन छीनने वाले का मुकाबला किया, जिस पर चैन छीनने वाले ने शुभम पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में शुभम जख्मी हुआ। मुकामी अवाम ने फौरी पुलिस को तलब किया और शुभम को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मैलार्देवपल्ली पुलिस स्नैचर की तलाश कर रही है। तेलंगाना मेदक जिले के नरसापुर में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान आतिशबाजी की वजह से स्कूटर को आग लग गई। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। चिंगारी स्कूटर पर गिरी और फिर आग लग गई। मुकामी लोगों की तरफ से ही आग बुझाई गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। केबीआर पार्क के पास कौमी परिंदे मोर के नजर आने से रास्ता चलने वाले महजूज हुए। बताया जाता है कि पार्क से निकलकर यह परिंदा बाहर फुटपाथ पर नजर आया। बाद में मुतल्लिका हुकाम को इसकी इत्तला दी गई और फिर परिंदे को अंदर मुंतकिल कर दिया गया। एसओटी एलबी नगर ने नागोल पुलिस के ताउन से नशावर अशिया की मुंतकली और कारोबार के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने जुनैद रजा सिद्दीकी और सुनील सबा को गिरफ्तार किया है। उनका कहना था कि मुलजिमीन आपस में दोस्त हैं। एसओटी ने एक मुसद्दका इत्तला पर 1 अप्रैल की शाम 2 मुश्तबा अफराद जो मोटरसाइकिल पर आ रहे थे उन्हें नागोल चौराहे के पास गिरफ्तार करके उनकी तलाशी ली तो पुलिस को उनके पास से एमडीएम में ड्रग 25.65 ग्राम दस्तयाब हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन, करीब 5,200 रुपए, 2 मोटरसाइकिल्स और तोलने की एक छोटी मशीन बरामद करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस की मजीद पूछताछ पर इस बात का भी पता चला कि मुलजिमीन के 2 साथी मोहम्मद अंसार और राजू जो हिमाचल प्रदेश से ड्रग्स खरीदते थे वो फरार हो गए हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। माली चैलेंजेस के बावजूद रियासत की तरक्की और अवामी फलाह के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। स्कीमों को अवाम तक पहुंचाना वलीन तरजीह। प्रजापालना प्रगति प्रणलिका ग्राम सभाओं के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में गैस की किल्लत। यूनिफॉर्म सिविल कोड, दस्तूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आसाम में मीडिया से बातचीत। शहर में मिलावटी और नाकिस ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 12 टन बकरे का गोश्त और दूसरा सामान जब्त। गैर कानूनी बेकरी का भी पर्दाफाश। और बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ ACB की कार्रवाई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। चैतन्यापुरी का ASI भी पकड़ा गया। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।